Krishna, and today again we're going to continue prokaryotic cell. This is our fifth lecture about the prokaryotic cell, and this will be the last of prokaryotic cell. प्रीवियस वीडियो में मतलब अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया. सबसे पहले वी डिस्कस सेल थ्योरी एंड सेल डिस्कवरी. आफ्टर दैट वी स्टडीड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. देन वी स्टार्टेड विद द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? इन दैट first we completed about the cell envelope. Okay, we have done with this. A specific or separate video is there on the cell envelope. अगर किसी का मिस हुआ है तो please watch that video. Okay, in that cell envelope lecture we come to know that this cell envelope is made up of how many layers? 3 layers. Look at this diagram. The white one, outermost glycocalyx. Inside this cell wall, inside that cell membrane, right? ये था हमारा cell envelope. इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म. ओके, इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था. ठीक है, अभी देखो इनसाइड साइटोप्लाज्म कौन कौन से पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे. सी दिस ऑरेंज कलर्ड इनवर्ड फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. दिस फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज मीसोसोम. ये भी हमारे लास्ट लेक्चर का पार्ट था. Even there we discussed that in the cytoplasm there are the presence of some circular structures which are called as inclusion bodies. Okay, it is inclusion bodies. And also there are two types of inclusion bodies. What type of substances are there in the inclusion body? According to that, two types are there, that is organic inclusion bodies and inorganic inclusion body, right? अगर inclusion body में organic substance stored होता है तो उसको बोलते हैं organic inclusion body, और inorganic substance stored हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? inorganic, right? organic inorganic. ऊपर से एक बैक्टीरिया बताया था आपको जो फोटोसिंथेसिस करता है. Try to recall the name. The name of bacteria is cyanobacteria. Okay, that cyanobacteria is having bacteriochlorophyll pigment. और वो pigment कहाँ पे stored होता है? It gets stored in the chromatophore. Okay, it is important for your MCQ. अभी तक हमने ये सारे parts complete किए. Now we gonna study about the other 3 parts which are present in the cytoplasm of this prokaryotic cell. Okay, so what we're going to discuss today? First of all, we're going to discuss about ribosomes. Okay, now what is mean by ribosome? In the cytoplasm of prokaryotic as well as eukaryotic cell, there are the presence of some granular bodies. ऐसे granular bodies होते हैं. These granular bodies are called as ribosome. Very important statement. Whatever cell organelles are there in the prokaryote or eukaryote, some organelles are covered with the single membrane, some are covered with the double membrane, but exception one is ribosome. Ribosome is the cell organelle which is without any membrane. Very important for your one-line questions as well as your MCQ. Never forget, ribosome, first of all, it is present in both prokaryote as well as eukaryote. And the second speciality, this is the cell organelle which is not covered with any membrane. Now, ये ribosome होते क्या है और what is the function of this ribosome? The function of ribosome is protein formation. Okay, see what term I am using? It is protein factory. अगर किसी भी बायो के बच्चे को एक क्वेश्चन पूछो ना, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज डैश डैश, तो प्रॉम्प्टली आंसर मिलता है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. वैसे ही और एक स्टेटमेंट आपको लर्न करना है, एंड द स्टेटमेंट इज राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री. इसका मतलब क्या है? सोचो, आप रोड से जा रहे हो और कहीं पे लिखा है, होर्डिंग लिखा है आइसक्रीम फैक्ट्री. मतलब इतना तो समझ में आता है कि वहां पे क्या बन रहा है? आइसक्रीम बन रहा है, इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया? आइसक्रीम फैक्ट्री. अभी इसको मैंने क्या नाम दिया? प्रोटीन फैक्ट्री. मतलब राइबोसोम एक ऐसा यूनिट होता है जो प्रोटीन फॉर्म करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है. दैट्स व्हाई राइबोसोम इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटीन फैक्ट्री. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ ये राइबोसोम किसने स्टडी किया और कौन से टाइप के राइबोसोम्स होते हैं? तो पैलेट नाम का एक साइंटिस्ट था. ही फाउंड दैट देयर आर द ग्रैन्युलर बॉडीज जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ठीक है, उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था स्वेडबर्ग. ओके, स्वेडबर्ग ने बोला राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट. ठीक है, उसने डिटेल स्टडी किया एंड ही कंक्लूड दैट द राइबोसोम which is present in the prokaryotic cell is called as 70S ribosome.
What is it? 70s ribosome. And the ribosome which is present in the eukaryotic cell, उसको हम क्या बोलेंगे? Eukaryotic ribosome, and it is 80s. Now what is this 80s and 70s? This S stand for स्वेडबर्ग यूनिट. किसने स्टडी किया? स्वेडबर्ग ने. ठीक है, तो उसने जिस हिसाब से एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कैलकुलेशन किया, उसके ऑनर में हमने इसको नाम दिया स्वेडबर्ग यूनिट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. मतलब ये जो S है दैट इज फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. नाउ व्हाट इज इट? First of all, we'll focus on this term, sedimentation. It's a very simple term. Sedimentation मतलब settling. Suppose आपके पास एक जार है. इस कंसिडर ये जार है हमारे पास और इसमें क्या किया हमने? पानी डाला है. ठीक है, यहाँ पे पानी है और उस पानी में हमने सॉइल पार्टिकल डाल दिए, पूरा मिक्स किया, वाटर का कलर चेंज. लेकिन फिर क्या किया हमने? इस जार को, इस ग्लास को ऐसे रखा फॉर फ्यू आवर्स. देखो, सबसे पहले दैट वाटर वॉज ब्राउनिश इन कलर, चॉकलेटी ब्राउन इन कलर. व्हाई? बिकॉज हमने उसमें सॉइल पार्टिकल्स डाले थे, राइट? अभी ऐसे रख दिया. आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल फाइंड दैट द सॉइल पार्टिकल, जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हमने डाले थे वो सारे नीचे सेटल हो जाएंगे. ये जो सेटलिंग होता है ना, दैट इज एक्चुअली सेडिमेंटेशन. ठीक है, तो अभी देखो, हर एक पार्टिकल को एक स्पेसिफिक टाइम लगेगा फॉर सेटलिंग. ठीक है, स्वेडबर्ग ने यही किया. इसने क्या किया? प्रोकैरियोटिक वाला राइबोसोम निकाला, यूकैरियोटिक वाला राइबोसोम निकाला और उसका किया अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन. सेंट्रिफिकेशन पता है ना, टेस्ट ट्यूब को ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे उसका अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन किया. एंड आफ्टर दैट ही चेक हाउ मच टाइम बोथ द राइबोसोम्स आर टेकिंग टू सेटल डाउन. ओके, एंड उस टाइम के हिसाब से इसने 70s एंड 80s ऐसे यूनिट्स निकाले. नाउ वन मोर पॉइंट, S मतलब सेकेंड्स नहीं है. वन स्वेडबर्ग यूनिट मतलब 10⁻⁻13 सेकेंड्स ऐसे कैलकुलेशन होता है. No need to remember this calculation. Just keep in mind what is 70s and what is 80s. Okay. So अभी के लिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा होता है? 70s होता है. और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए दिस इज इनफ. Okay, now we move to the next part. Other than ribosome, what's there? The most important part, the core part of every cell, that is genetic material. Okay, so the second part of today's lecture is genetic material. अभी ये किधर होगा? See, try to recall the basic difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell is undeveloped because it's not having nuclear membrane. So imagine here is the DNA, generally circular single DNA which acts as a chromosome which is present in the prokaryotic cell. Okay, so when cell is not dividing, that time this genetic material is present in the cytoplasm, basically at the center of the cell. But if there's a need of cell division, if there's a need of DNA replication, I told you the definition of replication in the previous video. That process of formation of new DNA is called as replication. तो जब replication होने वाला होता है, that time this DNA, this genetic material attaches to mesosome. ये कहाँ पे जाता है? Mesosome पे जाता है और वहाँ पे जाके इसका replication होता है. And that's why one of the function of mesosome is DNA replication. Now, I would like to tell you one more difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. See, सबसे पहले तो हमने देखा था prokaryotic undeveloped है. दूसरा डिफरेंस हमने देखा कि prokaryotic cell is without nuclear membrane. यहाँ पे मैंने nuclear membrane निकाला क्या? नहीं. तो ये जो स्ट्रक्चर है जिस एरिया में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, that structure is called as what? Nucleoid. It is nucleoid. Now one more difference. In the eukaryotic DNA, मतलब यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है, there DNA is present in the coiled form. DNA का coiling होता है, and for that coiling purpose there is involvement of histone protein. कौन से proteins होते हैं? Histone proteins are there. But in the prokaryotic cell there is a absence of histone protein. Again important statement for your exam, for your NEET. Okay, so in the prokaryotic cell, first of all, absence of what? Nuclear membrane, and the second, absence of genetic material. तो जो भी material है इसको हमने नाम क्या दिया है? Nucleoid. Understood? Now, along with this genetic material, there is a presence of some extra material. Now, what is it? See, अगर हम हमारी सेल देखते हैं तो in our one cell there is a nucleus. Inside nucleus confirm 46 numbers of chromosomes होनी चाहिए. If a person, a cell
is having less than 46 or more than 46 numbers of chromosome, then we suffer from genetic abnormalities, genetic disorder की जिसका solution नहीं है, जिसकी कोई treatment भी नहीं है. But bacteria's prokaryotic cells are extraordinary. देखो क्यों extraordinary है. See मेरी body अगर हम consider करते हैं, so whatever features I am having, whatever look I am having, whatever characters I am having, credit goes to my DNA, right? Credit goes to my genes. वैसे ही इस सेल को जो भी शेप है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी फंक्शन है, अंदर कौन कौन से पार्ट है, किसने क्या करना है, ये सब कुछ किसने डिसाइड किया? जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. बट along with this main मतलब कंफर्म, यू कैन से ये कंफर्म जेनेटिक मटेरियल तो होता ही होता है, बट कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है कि जिनके पास along with this main genetic material there is a presence of extra set of double stranded circular DNA. See मैं इसे निकालती हूँ. सपोज ये है इसका कंफर्म ओरिजिनल वाला डीएनए और मैंने यहाँ पे देखो 2 एक्स्ट्रा सर्कल्स बनाए. ठीक है. सो व्हाट इज इट? दिस इज एक्स्ट्रा, बट क्या है? तो सर्क्यूलर. कितने सर्कल है? 2 है. सो एक्स्ट्रा सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड. ओके. व्हाट इज इट? एक्स्ट्रा सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड. बट क्या डबल स्ट्रैंडेड? क्या? क्रोमोसोम और डीएनए. एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और मोस्ट कॉमनली क्रोमोसोम टर्म यूज करते हैं. ठीक है. सो ये जो है एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम और डीएनए, इट्स हैविंग एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन. तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्स्ट्रा वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड. व्हाट इज इट? प्लाज्मिड. अगेन इंपॉर्टेंट, ये 12th स्टैंडर्ड में भी आएगा. 12th स्टैंडर्ड में यू आर हैविंग अ चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम एक सेल से डीएनए निकालेंगे, दूसरे सेल में डालेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, इंसुलिन फॉर्मेशन स्टडी करेंगे, हार्मोन फॉर्मेशन स्टडी करेंगे. देयर यू विल गेट दिस टर्म प्लाज्मिड. सो वहां से फटाक से डेफिनेशन आनी चाहिए. प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके. कि जिसको कौन सी एबिलिटी है? रेप्लिकेशन की एबिलिटी है. ना जिसके पास, जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, उसको एडवांटेज मिलता है. Now what type of advantage? There are 2 types of plasmid. सबसे पहला advantage, plasmid is having ability of replication, and that's why it is beneficial for the bacteria. Now how? There are 2 types of plasmid. The one is called as F plasmid. See, the one is F plasmid and another one is R plasmid. Okay. Now what is F and R? This F stand for fertilization. There are some plasmids who helps in the fertilization of bacteria. Such a plasmids are called as F plasmid. Now how? Again, go back to previous lecture. Previous lecture में I told you cytoplasmic inclusions और cytoplasmic cell envelope पे जो structures होते हैं, उस structure के बारे में हमने discuss किया था. That there are the presence of flagella. See, a thread-like structure which is called as what? Flagella. ओके. फिर छोटे छोटे जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हमने नाम दिया था सिलिया. एंड अलोंग विद दैट एक और टर्म बोली थी मैंने आपको, याद है? पिलाइज. देयर आर द प्रोजेक्शंस ऑफ टर्म पिलाइज व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ आपको ऐसे दिखाया था. मैंने बोला था कंसिडर दिस इज वन बैक्टीरिया, दिस इज अनदर बैक्टीरिया, एंड देयर इज अ नीड of reproduction. There is a need to transfer the genetic material of one bacteria into another bacteria. तो इस बैक्टीरिया के ऊपर एक प्रोजेक्शन होता है. That projection is called as pili. Okay, so let's imagine my fist as a one bacteria and it's having a projection. This projection is pili. Another bacteria, it's also having a projection that is pili. So at the time of replication, at the time of reproduction, ये जो 2 बैक्टीरियाज है with the help of pili, they joins with each other. और यहाँ पे ये जो ज्वाइनिंग है, यहाँ पे एक कंजुगेशन नाम की ट्यूब बनती है. एंड वाया दिस ट्यूब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ डीएनए व्हिच इज कॉल्ड एज कंजुगेशन. एंड फॉर दैट कंजुगेशन पर्पस देयर इज अ नीड ऑफ अ पिलाई. दैट पिलाई इज कॉल्ड एज सेक्स पिलाई और सेक्स पाइलस. इट इज कॉल्ड एज सेक्स पाइलस. So F plasmid helps in the formation of that F pilus, and that's why it is important for fertilization. Now what is it? R plasmid. R ये आएगा हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में. R stand for resistance. What is it? रेजिस्टेंस. R मतलब रेजिस्टेंस, मतलब एक ऐसा प्लाज्मिड कि जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बनाएगा. आपको रेजिस्टेंस एंड सेंसिटिविटी पता होगा. सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? या सेंसिटिव है, समवन इज सेंसिटिव, मतलब अगर कुछ हुआ तो खामोश हो जाता है, वो चुपचाप हो जाता है, ऐसे. ठीक है. और रेजिस्टेंट मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता. जस्ट
इमेजिन आई एम हैविंग अ वुंड हियर, मुझे यहाँ पे कुछ तो वुंड हुआ है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज देयर, और आपने क्या किया, यहाँ पे मुझे वुंड हुआ है और आपने क्या किया, आपने मुझे एक एंटीबायोटिक दिया. व्हाट इज इट? एंटीबायोटिक. नाउ व्हाट इज एंटीबायोटिक? इट्स मेडिसिन व्हिच किल्स बैक्टीरिया. तो आपने मेरी ये जो वुंड है यहाँ पे मुझे पेनिसिलिन नाम का या कोई तो एंटीबायोटिक मुझे दिया, मैंने भी आपके ऊपर ट्रस्ट किया और वो एंटीबायोटिक यूज किया, लोशन था वो यूज किया मैंने, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 days 15 days मेरी वुंड क्लियर. ओके, एकदम क्लियर हो गई. मतलब क्या हुआ, वो जो मेडिसिन था, वो जो ड्रग था, उसने मेरे बैक्टीरिया को मार दिया, इसलिए वो इन्फेक्शन, वो वुंड जो था वो हील हो गया. बट आफ्टर फ्यू डेज सपोज यहाँ पे कुछ हुआ है, ठीक है, और आपने फिर से, चलो मैम को इन्फेक्शन हुआ है ना, तो विल गिव एंटीबायोटिक टू मैम, तो आपने मुझे लोशन वाला एंटीबायोटिक भी दिया, ओके, मतलब ऑइंटमेंट भी दिया और ओरल मेडिसिन भी दे दिया एंटीबायोटिक्स के. मैंने फिर से वो डोज कंटिन्यू किया, 10 days गए, 15 days गए, 20 days गए, बट स्टिल ये हील नहीं हो रहा है. मतलब क्या हुआ, सेकेंड टाइम जो आपने एंटीबायोटिक दिया या सेकेंड टाइम जो ये इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एंटीबायोटिक से नहीं मर रहा है. मतलब इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है, इट्स हैविंग अ प्लाज्मिड. जैसे डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम के पास जैसे जीन्स होते हैं, वैसे ही प्लाज्मिड के पास जीन्स है. और आर प्लाज्मिड मतलब दिस प्लाज्मिड इज हैविंग सम जीन्स व्हिच आर मेकिंग दैट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट. ओके, सो कोई भी एंटीबायोटिक यूज करो, स्पेसिफिकली सपोज पेनिसिलिन वाला एंटीबायोटिक आपने यूज किया और ये बैक्टीरिया मर ही नहीं रहा है, ये इन्फेक्शन डे बाय डे बढ़ ही रहा है, मतलब इस बैक्टीरिया के पास एक जीन है एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस फॉर पेनिसिलिन. ओके, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे पेनिसिलिन आर बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब इट्स हैविंग अ रेजिस्टेंट जीन फॉर पेनिसिलिन. ऐसे कोई भी हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एक्सेट्रा. ओके, सो सी अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया. We completed cerebellum, then we completed cytoplasm, then we completed cytoplasmic inclusion bodies, mesosomes, and today we have done with the ribosomes, then genetic material and plasmid. This is all about your prokaryotic cell. See, this chapter, this topic is very important. आप क्रॉस चेक करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे. सो जितने भी पॉइंट्स बोले हैं, जहां जहां पे मैंने बोला है कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, नोट डाउन करो. ओके, और यहाँ पे फिक्स करो. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे. टिल देन, थैंक्स, बाय बाय.